दोस्तों 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त देश की 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ना के बराबर ही था। आजादी से ठीक पहले साल 1943 में देश ने आज तक की सबसे बड़ी भूखमरी देखी, जिसमें ईस्ट इंडिया में लगभग 40 लाख लोग भूखमरी से मरे, जिसका नाम था बंगाल फेमाइन। जिस वजह से देश के आजाद होते ही सरकार ने 20 सालों तक एग्रीकल्चर को बढ़ावा तो दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी पर फोकस नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ देश की आबादी फूड प्रोडक्शन के मुकाबले तेजी से बढ़ रही थी, जिस वजह से सरकार को समझ आने लगा था कि इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि देश में फूड प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। जिसके बाद सरकार ने साल 1967 से लेकर 1978 के बीच ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के साथ साथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हाई यील्डिंग सीड्स का यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन को कई गुना इंक्रीज कर दिया। Agriculture started along with human civilization, but it was totally dependent on nature. Use of chemical fertilizers started during 1850 itself in Western countries. But in India, chemical farming became popular with the Green Revolution, which started in 1965. High-yielding hybrids entered our farms. Chemical fertilizers became inevitable to get higher yield from these hybrids. This paved the way for indiscriminate use of chemical fertilizers. The scientific community supported chemical farming, neglecting the possible bad effects of chemicals in the long run. Government departments promoted this on priority. It is true that this green revolution produced enough food for the nation. But in due course of time, pests and diseases started attacking the crops. Poisonous pesticides entered the scene for crop protection. The hazardous effects of these poisons were quite evident very soon. Soft topsoil started getting hardened due to chemical residues. Groundwater was polluted with nitrates, sulfides, and other chemical impurities. The balance of nature was lost, and pest attack ran out of control. Cabbage and cauliflower needed 8 to 10 sprays. Cotton needs 13 to 15 sprays, and grape consumes 30 to 40 sprays in a season. Then imagine the effect of chemicals. Consumers using these produce and the farmers spraying these pesticides are affected with asthma, allergy, cancer, and with many more health problems. We lost rich biodiversity and balanced nature before we got alerted. The volume of chemicals used has grown many times from 1965 to 2010. But the increase in production is only 4 times. Even this increase is not just due to chemicals. Increase in cultivated area and irrigation contributed a lot. Of course, only chemicals are not the sole culprits. Excess tillage, hybrids targeted only towards high yield, genetically modified crops and varieties, excess irrigation, unseasoned crop cultivation, unacclimatized crops and varieties, tendency of easy crop production, etc. are also the reasons for the pathetic situation of today's agriculture. Green Revolution has become the war against nature. But now, we have lost the war. The only option left with us is to surrender to nature again. साथियों, इस अमृत काल में दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी और प्रकृति से समन्वय का बेहतरीन समाधान हमें भारत से देना है। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया था। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। इसलिए आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत
तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। साथियों, आज केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है। और मैं भी दिल्ली की उन 2 बेटियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दिल को झकझोर दिया। धरती मां पुकार पुकार करके कह रही है कि मुझे मत मारो। बहुत उत्तम तरीके से नाट्य मंचन के द्वारा उन्होंने हमें जगाने का प्रयास किया है। मैं तो चाहता हूं हर कोऑपरेटिव संस्था इस प्रकार की एक टोली तैयार करें, जो टोली हर गांव में इस प्रकार से मंचन करे, लोगों को जगाएं। हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमाण को स्वीकृति दी गई है। पीएम प्रणाम, लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। इसके तहत वैकल्पिक खादों, ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत अहम है। मेरा सभी सहकारी संगठनों से आग्रह है कि इस अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप तय कर सकते हैं कि अपने जिले के 5 गांवों को केमिकल मुक्त खेती के लिए 100% हम करके रहेंगे। 5 गांव, और उन 5 गांवों में किसी भी खेत में 1 ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे पूरे जिले में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, सबका प्रयास बढ़ेगा। साथियों, एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनिश्चित कर रहा है। ये है गोबर धन योजना। इसके तहत देश भर में वेस्ट से वेल्थ बनाने का काम किया जा रहा है। गोबर से, कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने का ये बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। पीएम प्रणाम कैसे फायदेमंद होने वाली है, तो बेसिकली जो कैबिनेट में अप्रूवल मिले हैं वो 4 चीजों को मिले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3.68 लाख करोड़ रुपीस यूरिया सब्सिडी के लिए बजट जारी किया गया है आने वाले और इस 3 साल के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 3.68 लाख करोड़ रुपीस का। अब आप ये सोचिए 3.68 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि बहुत सारे स्टेट्स का, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे उत्तराखंड का, उसका बजट ही 77,000 करोड़ का या फिर 80,000 करोड़ के आसपास होता है। तो बहुत छोटा बजट होता है बहुत सारे स्टेट्स का, बट ये सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब्सिडी का लोड किस पे है? गवर्नमेंट पे। PM Pranam scheme will be launched to incentivize the states, union territories to promote a balanced use of fertilizer and also to promote the organic farming and natural farming. इसके अलावा सेंट्रल सब्सिडी देखेंगे आप फर्टिलाइजर पे, ये यूरिया सब्सिडी है, ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, ये टोटल सब्सिडी है। तो जो टोटल सब्सिडी 2010 में 60,000 हुआ करती थी वो इंक्रीज होके 1,40,122 करोड़ हो चुकी है पिछले साल तक। तो आप देखेंगे कि वो दुगने से भी ज्यादा सब्सिडी बढ़ चुकी है। मतलब ये सारा क्या है? एक्सपेंसेस का लोड है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसको कम करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर का यूज करना भी हमारे लिए
कम यूज करना भी जरूरी है। जहां फर्टिलाइजर, अगर आप देखेंगे कि जो क्रॉप का यील्ड का रिस्पॉन्स है टू द फर्टिलाइजर, जो 1960 में 12.1 केजी हुआ करता था, वो आज सिर्फ 5 केजी रह चुका है। कहने का मतलब है कि 1 केजी फर्टिलाइजर से जहां पहले 12 किलो प्रोड्यूस होता था, आज वहां केवल 5 किलो प्रोड्यूस हो रहा है। फर्टिलाइजर का यूज बढ़ता जा रहा है, क्रॉप हमारी यील्ड कम करती जा रही है। तो